Wonderful, wonderful to have you here. Brilliant to have Thank you you here so on the much. show. Thank you. So, how's it been in Dubai? It's good, yeah. Really enjoying it. I think for us, we're doing really well as a team. It's slightly different this time because of biosecurity bubble and all the situation around. But yeah, enjoying with the team and really happy at this point. Yeah, I just wanted to tell you, what was amazing yesterday was that fielding effort that you did out there and that certain six, that was such an absolutely amazing face. So, what happened? Did you think it was a six going out, or, what happened? What was going through your head when that ball was going out of the boundary? Now, initially, I thought ball is coming straight to me, but later on, I mean, it was just going above my head. So I thought it's all about first my intention was to catch the ball, and as soon as I caught it, then I saw the boundary line was right just behind me. So I just throw the Okay, ball and save at least 5 runs for my team. okay. Because that point, I thought obviously the momentum was really important, and I felt that really helped our team to get that momentum on that particular ball, and obviously then after that it was difficult for them to chase that total. Yeah, I mean, absolutely. That's what I tell people that, the great thing about, true sportsmen is that they never give up. You never know how you can make a difference to your team. Maybe you don't get a Exactly, chance at the exactly. bat. Yeah, Joy, go on, go on. I lost your voice there. Sorry. Yeah, no, no, absolutely. No, I'm saying it's a miracle that you can make a difference with the team in anything. If not with the bat, Absolutely, absolutely. I was really happy because yes, you as a batsman you want to contribute with your bat, but fielding is one aspect that you can control every time, and I always focus on that. Every practice session give my more than 100%. So we all know as a sports person, as an individual, if we can save 10-15 runs in the field, we can actually win the game for our respective teams. oh, absolutely. I just wanted to say delighted to have you on Huddle because, like, we need sportsmen who care about physical fitness, who care about the fact that so many of the people, and the big thing for me is that, you are professional athletes at the top of the pyramid, right at the top. But, after that, the opportunities to play become so little that it's so difficult for people to come in. So I'm delighted that you're a part of Huddle. I want to take you back on a journey because, I've lived in Calcutta and I've, grown up. Army was easy because, you had cantonments, big fields. Then in Calcutta it was tough. Fortunately, I lived next to a big ground. Where did you start playing? Where did you start playing your games? Where did you start? See, firstly, Joy, it's good to be associated with Hurdle, and I'm glad that uh, we both are actually with Hurdle, and I'm really happy. For me, I started my journey in Dombivli, my cricket in Dombivli, when I was Okay. 7 years old. And I mean, I used to play like every other kid in India, in our building, in our down with my with my mates. So, and I used to break so many window panes, and there were two, three complaints every single day. People used to come and complain about me. Your kid is Ajinkya is doing this, Ajinkya is doing that. But I think talking about recreational sport, talking about any kind of sport, I mean, it's really good for your physical fitness, your mental fitness. Sports actually teaches you to be competitive, teaches you some life lessons as well. So my journey actually began from Dombivli, uh, and after that, yeah, for me, cricket was everything. I mean, it's my passion, it's my love, and it taught me so many things. But एक चीज बताइए, all of us have played in the building and played downstairs and all that. From there, what was that thing that made you get into professional cricket and around what age? As in, not professional cricket, but proper cricket with pads and gloves and all. How did that move happen? वो कैसे हुआ? आई थिंक वो हुआ, मतलब जैसे मैंने बात करी कि मैं बिल्डिंग में खेलता था, तो हमारे एक नेबर थे, उन्होंने मुझे बैटिंग देखते थे और उन्होंने मेरे पापा को कहा एक्चुअली कि हिज टेक्निक लुक रियली गुड, तो आप उसको कोचिंग एकेडमी में क्यों नहीं ट्राई करते। तो वहाँ से फिर पापा ने मुझे एक डुम्बिली में द्रोणाचार्य क्रिकेट क्लब करके वहाँ पर हम जाने लगे। सो एट द एज ऑफ 10 एक अंडर 14 के सिलेक्शन ट्रायल्स थे,
उस ट्रायल्स में हमारे जो कोच थे उन्होंने मुझे भेजा, और क्योंकि मैं उस वक्त फिर भी अंडर 14 के लिए भी मैं बहुत छोटा था, बट उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, आप वो एक्सपीरियंस लो, आप अगर सिलेक्ट भी नहीं होते तो भी ठीक है। तो वहाँ पर जाके और लकीली फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद जो जितने सारे 2-3 राउंड्स हुए उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। आपको पता ही है कि इंडिया में अगर आप सिलेक्शन ट्रायल के लिए जाते हो तो लगभग कम से कम 500 लड़के होते हैं, और आपको जस्ट यू हार्डली फेस 3-4 बॉल्स इन द नेट। तो हेलो, कैन यू हियर मी जॉय? Yeah, I can hear you absolutely. या सो वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और ऑब्वियसली मुझे था कि नहीं आगे बढ़ के प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है। और बचपन में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, उनको हमेशा मैं टेलीविजन पे देखता था, उनके मैचेस एक जगह पे बैठ के देखता था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, और जो सिलेक्शन ट्रायल में मैं गया उसी वक्त मतलब उसी फर्स्ट सिलेक्शन ट्रायल में मैं सिलेक्ट हुआ। तो एक्चुअली जर्नी मेरी वहाँ से शुरू हुई। बस और एक बार वो शुरू हो गया तो I still feel that मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ ऑब्वियसली माय फैमिली टू सपोर्ट मी, बट हमारे जो नेबर थे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरे पापा को कहा कि आपको इसे कोचिंग एकेडमी में डालना चाहिए। So I think yeah, thanks to him. यार एब्सोल्युटली वही बात है that neighbor, did he know that one day you will be the captain of India? I mean, playing for India is a dream, but to be captain of India कितनी बड़ी चीज होती है सोच भी नहीं सकते। I mean, it is just unbelievable. But वो जो जर्नी शुरू हो गया, तो ठीक है आपने शुरू किया, नाउ ट्रेनिंग कैंप 10 years old 11 years old आप खेल रहे हो, you're a good player. Your parents will be thinking यार मिडिल क्लास लड़के घर से हैं, उन लोग पढ़ाई भी करना है, ये भी करना है। At what stage did you say नहीं मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकता हूँ? कब लगा आपको कि मैं बन सकता हूँ? मुझे लगा शायद अंडर 14 के लिए मैंने मुंबई के लिए फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया, और उस वक्त उस साल में मैं सिर्फ एक ही मैच खेला था। अंडर 14 के उस वक्त 4 से 5 मैचेस होते थे, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप 2-3 मैचेस नॉकआउट्स में खेलोगे। तो उस साल हमने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन जो लास्ट लीग मैच था हमारा अंडर 14 का, उसमें मुझे चांस मिला और मैंने कुछ अच्छे रन बनाए थे उस मैच में। तो वहाँ से मुझे लगा कि क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, मतलब फील भी हो रहा था कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं हर एक प्रैक्टिस सेशन, हर एक मैच खेलना, जो भी मेरे जो प्रिपरेशन थे, हर एक सेशन में इंजॉय कर रहा हूँ। आफ्टर एवरी सेशन मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट होती थी, स्माइल होती थी। सो वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं मैं रियली इंजॉय कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से एक्चुअली क्रिकेट एज अ प्रोफेशनल में खेल सकता हूँ। और आई थिंक मेरे लिए तो मैंने यही सोचा कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एटीट्यूड इस खेल में बहुत ज़रूरी है, और मैंने उसी के ऊपर फोकस किया है और अभी भी उसी के ऊपर फोकस करता हूँ। But no, it's a wonderful story. एक चीज बताइए, how do you stay fit? Because you know in middle class big cities in India, fitness अब जिम तो आजकल तो काफी ज्यादा हो गया है, but even 5 to 10 years later इतने facilities थे नहीं। आप फिट कैसे रहते थे? How did you keep yourself fit? फिट उस वक्त हाँ नहीं, फिटनेस मेरे लिए फिटनेस लकीली मैंने साइड बाय साइड में कराटे भी करता था, तो आई एम ब्लैक बेल्ट इन जूडो। वाओ। सो मतलब मेरा रूटीन ऐसे होता था, मॉर्निंग क्रिकेट प्रैक्टिस, आफ्टरनून में स्कूल्स होते थे, इवनिंग्स में मेरे जूडो की क्लासेस होते थे। तो आई थिंक जूडो ने काफ़ी मुझे हेल्प करी टू कीप माई सेल्फ रियली फिट, एजिलिटी वाइज, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज। 6 साल मतलब took me 6 years to get my black belt, first dan of black belt. So उस वक्त ऑब्वियसली जिम का उतना मतलब आपको पता नहीं था जिम, लेकिन आउटडोर रनिंग काफ़ी करते थे जब ग्राउंड में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। मॉर्निंग में हमेशा रूटीन होता था कि आपको 5-6 राउंड मारने हैं, जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैच खेलने के लिए जा रहे हो तो आपको 1 या 2 राउंड मारने हैं। तो उस वक्त जॉगिंग बहुत, रनिंग बहुत करते थे, और उसके अलावा ऑब्वियसली कराटे। सो कराटे की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई फिट रहने के लिए। एंड नाउ आई मीन एज वी ऑल नो, क्योंकि फिटनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे लाइफ का, और अगर आप फिट हो तो आप मतलब कुछ भी अचीव कर सकते हो। नो तो ये वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू नो एक चीज जो आपके बारे में, राणे के बारे में ऑलवेज बोलते हैं कि अजिंक्य जिंक्स इज अ वेरी काम पर्सन, इज समबडी जो बहुत ठंडा दिमाग से देखता है, करता है। क्या ये इस कराटे और जूडो लर्निंग मार्शल आर्ट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ दैट, ये कामनेस क्या वहीं से आया है क्या? यस आई थिंक वहीं से आई है, क्योंकि कराटे ने, जूडो ने मुझे यही सिखाया कि आपके एक्शंस आपके लिए बात करते हैं।
और हमेशा आपको खुद पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। और उस कराटे क्लासेस में मैं सबसे छोटा था, तो मेरे लिए वही था कि मैं खुद को काम रखूँ, कंपोज रखूँ, और जो मेरे एक्शन से मैं दिखा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सही होगा। बातें करके या मतलब जो हम बाहर से दिखाते हैं एग्रेसिवनेस, वो शायद मैंने वही डिसाइड किया और वही मुझे लगा उस वक्त Okay, अबाउट so अबाउट कि अगर मैं मेरे सही एग्रेशन को एक्शन से मैं अगर दिखा सकता हूँ, तो मेरे लिए वो सही है। perfect. तो नहीं, वंडरफुल, एज आई सेड अगेन, गो कमिंग बैक टू हडल की, मैंने भी यहाँ जब ज्वाइन किया था और वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, इट्स बिकॉज हमारे देश में वो फैसिलिटीज, खेलने का फैसिलिटीज का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि कहीं मिलते नहीं है। सो एग्जैक्टली दैट थिंग दैट हमारे इन दिल्ली मैंने देखा है कि मेरे बिल्डिंग में क्या होता था कि 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले 5 to 10 people would be walking downstairs, okay? या रनिंग तो एक दो बंदे करते हैं। आज अगर आप नीचे जाइएगा तो देखिएगा एटलीस्ट 20 people are running, 50 people are walking। तो यहाँ आपको क्या क्या बंबई में भी आपको ये लग रहा है कि ये रेवोल्यूशन हो रहा है, कि ये फिटनेस की तरह, स्पोर्ट्स फिटनेस की तरफ एक देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स स्पोर्ट एंड फिटनेस? क्या आपको ये मुंबई में भी दिख रहा है क्या? मुंबई में बहुत दिख रहा है, मतलब स्पेशली अगर मैं मेरे बिल्डिंग में मतलब बच्चों मतलब फुटबॉल खेलने के लिए जाता हूँ, और एक स्पोर्ट खेलना आप हमेशा एक एंजॉय करते हो। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स से आपको कॉम्पिटिटिवनेस आपको सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं नीचे खेलने के लिए जाता हूँ। स्पेशली इस लॉकडाउन में मैंने देखा कि लोग वॉकिंग के लिए जाते थे, जॉगिंग के लिए जाते थे, भले छोटा एरिया हो, लेकिन मुंबई में भी वो कल्चर आया है, मतलब, और आई एम श्योर पूरे इंडिया में वो कल्चर आया है स्पोर्ट्स खेलने का, फिट रहने का। और एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, अगर आप खुद के फिटनेस के बारे में सोचते हो और खुद के हेल्थ के बारे में सोचते हो, खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बड़ा पार्ट प्ले करता है ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस के लिए, लेकिन मेंटल आपके हेल्थ के लिए भी। तो ये काफ़ी मैंने देखा है लास्ट 5-6 मंथ्स में, उससे पहले भी आई एम श्योर, बट 5-6 मंथ्स में ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं खुद हमारे पार्किंग एरिया में रनिंग करने जाता था, और क्योंकि आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखता था कि मॉर्निंग में या इवनिंग में जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं लोग, वो वॉक्स के लिए आते थे या रनिंग करने के लिए आते थे। आई नो, मैं जब दौड़ना शुरू किया था अबाउट 5 years बैक, तो आई वॉज दी ओनली व्हाइट हेड मैन जो दौड़ रहा था। आज की डेट में पर आप गुड़गांव में जाओगे तो आप देखोगे हर बिल्डिंग में दौड़ रहे, अडल्ट भी दौड़ रहे, एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज बच्चे लोग भी ना, फिटनेस एक फिटनेस हैबिट होता है, और या हैबिट घर में शुरू होता है। तो एंड यही मैं बताता हूँ, जब हम फैन बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई क्रिकेट हमारे देश में इतना स्ट्रांग है और फुटबॉल अभी तक नहीं है, कि आप अगर इंग्लैंड में जाओगे तो आप लिवरपूल का गेम देखने जाओगे तो एक पेरेंट विल बच्चे को, बेटी हो बेटा हो, 10 साल की उम्र में टेक हिम बाय द हैंड एंड से ओके कम टू एनफील्ड पार्क एंड वॉच द गेम, एंड वहीं से या शुरू होता है एक जर्नी स्पोर्ट या का। वो हम लोग सिर्फ क्रिकेट में कर पाए हैं और कोई स्पोर्ट में वो जर्नी नहीं बना पाए, और इसीलिए कहीं रह गया है। बट एक चीज और, ये जो स्पोर्ट में यू बीन सच ए लार्ज पार्ट, who are your mentors in Indian cricket? Who are the people who you looked up to or who gave you good advice to make you the player you are today? आई थिंक इंडियन क्रिकेट में मेरे लिए मतलब जैसे मैंने कहा कि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर बचपन से मेरे रोल मॉडल रहे हैं, लकी इनफ टू प्ले विद देम, बहुत कुछ सीखने भी मिला है उनसे। उनके अलावा प्रवीण आमरे सर है, मैं जिनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ जब भी हम मुंबई में होते हैं, जब भी अवेलेबल होते हैं, और वो हमारे मुंबई टीम के काफ़ी साल से कोच भी रहे हैं। तो वो उन्होंने हमेशा से मुझे बताया कि क्या सही चीज़ है, क्या आपको करना चाहिए, आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। राहुल द्रविड़ और सचिन पाजी ने इंडियन ड्रेसिंग रूम में यही कहा कि आपके जो कंट्रोल में है आप उसी के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाएगी, आपको ज़्यादा उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये है जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और जिनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला है, और प्रवीण आमरे सर है जिन्होंने ऑब्वियसली मेरे टफ टाइम्स में मुझे काफ़ी हेल्प करी है और मुझे सपोर्ट किया है। तो एक चीज बताइए दैट what are your lessons from sport? आपने स्पोर्ट से क्या सीखा है? स्पोर्ट has given you a lot and you've been an amazing player for the country.
What have you learned from sports? Sports से आपको क्या मिला है? First of all, I think never give up. उसके बाद कोई भी चीज आप ग्रांटेड नहीं ले सकते हो. आपको हर एक सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक रिस्पेक्ट फॉर मी, नेवर गिव अप एंड रिस्पेक्ट एंड Thank you so on the field. Attitude on the field, on and off the field. No, absolutely, and that's what I love. You know, the way even if you get out, you smile because you know that ठीक है, जो हो गया तो हो गया. मैं रोने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है at this point in time. But एक चीज बताइए, what is the lowest point from which you came back and did well? कि आपको कैसे, you know, because sport in India is so tough to play at the top level. You know, ups and downs तो होते रहते हैं. So आप can you, is there any? Lost your voice there a little bit. Yeah, so I'll just repeat that. So sports में you always have lots of ups and downs in sports. Kabhi, you know, you're doing very well, sometimes bad. Is there any moment you remember, but what is your most down moment in sport? कि आपको लगा कुछ नहीं होगा and you came back from there? Down moment, मतलब काफी वैसे अप्स एंड डाउन मोमेंट आया, लेकिन मैं सबसे बड़े मोमेंट से सीखा हूँ. फॉर मी इट वाज, मैं 2 साल टेस्ट टीम के साथ था और 20 टेस्ट मैच में बाहर था. आई वाज 20 टेस्ट मैच में 12th में था. और आई थिंक वो सिचुएशन में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ सिखाया मुझे उस सिचुएशन से, कि आपको ऑब्वियसली कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. जो आपके ड्रीम्स है, जो आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, और जो आपके ड्रीम्स है उसके ऊपर आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. आपको हमेशा से, आप कैसे उस ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, आपको हमेशा से आपका वो गोल होना चाहिए. तो आई थिंक वो 2 साल से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, जो 20 टेस्ट मैच में कम्प्लीटली बाहर था. और उसके बाद मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ दिल्ली में, एंड टेस्ट डेब्यू अगेन इट वाज नॉट दैट गुड. यस, हम लोग सीरीज जीते थे, बट पर्सनली मेरे लिए अच्छा नहीं रहा था. और लोगों ने काफ़ी कुछ बातें करना शुरू करी थी उस वक्त, कि नहीं ये बिलोंग नहीं करता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, एंड आई मीन सो मेनी अदर थिंग्स. बट फॉर मी इट वाज ऑल अबाउट, आई थिंक, मैं कैसे उस मोमेंट से, उस सिचुएशन से कम बैक करता हूँ, एंड टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करके कैसे मैं मैचेस जितवाता हूँ. आई थिंक मेरे लिए वही था. इट वाज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन फॉर माय टीम. आई वाजंट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. और आई थिंक वही एटीट्यूड के वजह से आज मैं जो हूँ यहाँ पर हूँ. तो या आई थिंक वो 2 मोमेंट्स है मेरे लिए. डेब्यू से पहले 20 टेस्ट मैचेस, एंड इन माय डेब्यू टेस्ट गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन दिल्ली. उसके बाद फेलियर के बाद कैसे मैंने कम बैक किया, बाउंस बैक किया, एंड या सो दैट्स व्हाई आई सेड नेवर गिव अप इन योर लाइफ. एंड जो आपके ड्रीम्स है, आपको बड़े ड्रीम्स होने चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आपको सैक्रिफाइसेस करने होते हैं, बट इट्स रियली वर्थ इट. Oh, so that's a wonderful story. तो 11 टेस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया. आदमी लोग सोच ही नहीं सकते. सोचते हैं कि इंडिया के लिए एक बार खेल ले, कोई सोचता है कि एक बार इंडिया के लिए एक सेंचुरी बना दूं तो कितनी बड़ी बात है. आपने 11 टेस्ट सेंचुरीज मारे इंडिया के लिए. Tell me, and I hope you will hit many more in the future. But tell me, which one of them is the most special for you? आपको सबसे स्पेशल कौन सा लगता है? मेरे लिए स्पेशल, सबसे स्पेशल कौन था? ये 11 टेस्ट सेंचुरीज में सबसे स्पेशल वाला कौन था? आई थिंक सारे सेंचुरी स्पेशल है, बट अभी तक सबसे स्पेशल, और मैंने हमेशा से कहा है, लॉर्ड्स में जो मैंने सेंचुरी बनाई थी, फॉर मी दैट्स रियली स्पेशल. क्योंकि जिस सिचुएशन में हम लोग थे, ऑब्वियसली मैच जीते हम लोग, उसके लिए ज़्यादा वो स्पेशल हो गए, लेकिन जिस सिचुएशन से आके हमने मैच जीता था वो, सो that was really special for me. Yeah, that is the one place where Sunil Gavaskar only scored a century as a NCC, never as India. And Sachin Tendulkar doesn't have a century, but Ajit Agarkar has a century, which is the strangest thing that, you know. But yes, Lords scoring a century at Lords is a very special thing. एक चीज बताइए, you've always had an interest in other sports as well. I saw you at the launch of the Under-17 Women's World Cup. It was wonderful to see you there. So, you know, do you have this love for football? Where does it come from? Yes, hello. Yeah, I can hear you. Yeah. Can you repeat it again, please? आपको football, you've got. Where did this love from football come? I mean, you've been a part of this. You helped them launch their emblem in 2019 towards the end. So, where does this love for football come from?
फुटबॉल, मैं जनरली फुटबॉल वर्ल्ड कप्स काफी फॉलो करता हूँ। और तो मेरे लिए स्पोर्ट्स मतलब मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स, मुझे कोई भी स्पोर्ट हो वो मुझे खेलना पसंद है। जैसे मैंने कहा कि मैं फुटबॉल तो कहीं ना कहीं हम खेलते ही रहते हैं, इवन वार्म अप्स में हम फुटबॉल खेलते हैं। बट फुटबॉल जनरली मैं वर्ल्ड कप्स काफी फॉलो करता हूँ। तो और जब मुझे इनवाइट किया गया वहाँ पर वर्ल्ड कप के लिए, आई वॉज रियली हैप्पी। एंड ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए मैं काफ़ी पागल हूँ। उसके अलावा मैं ऑब्वियसली बैडमिंटन, जब भी मौका मिलता है मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ। और बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको, हर एक स्पोर्ट से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं घर पर हूँ, जो जो स्पोर्ट्स आप देख सकते हो, जो कुछ उससे सीख सकते हो, तो उससे सीखना चाहिए। तो फुटबॉल का एक्चुअली क्रेज मुझे वर्ल्ड कप जो है ब्राजील को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ वर्ल्ड कप्स में। तो वहां से एक्चुअली फुटबॉल का क्रेज बढ़ने लगा। वंडरफुल। और मुंबई में आजकल तो सब जगह में छोटे छोटे 5-on-5, 4-on-4 हर्डल इज डूइंग अ लॉट ऑफ दीज ग्राउंड। सो फुटबॉल और या बैडमिंटन क्या आप रेगुलरली खेलते हैं? चांस मिलने से क्या आप ये दोनों स्पोर्ट खेलते हैं क्या? बैडमिंटन रेगुलरली उतना नहीं, क्योंकि जब क्रिकेट से ब्रेक होता है, जब काफी समय तक क्रिकेट नहीं होता है, तो हम जाके बैडमिंटन खेलते हैं। जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ मुंबई में, वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर खेलते हैं। फुटबॉल हमारे बिल्डिंग में फुटबॉल खेलने के लिए जगह है, तो वहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं। तो जैसे कुछ समय मिलता है अलग स्पोर्ट्स खेलने के लिए, मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी स्क्वॉश खेल लेता हूँ। तो ये काफ़ी स्पोर्ट्स खेलना मुझे पसंद है। टेनिस खेल लेता हूँ। अरे तो वंडरफुल। या बट नो सो बट ओनली जब जब क्रिकेट नहीं होता है, तभी बाकी सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ। नो एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप जब स्कूल में थे आपके काफी दोस्त लोग होंगे, हु वर क्लासेस स्टडिंग विथ यू। So, now 15, 20 years have gone by, aap log sab, in your careers. How many of them have stayed fit like you? Like you are obviously a sportsman, you've stayed fit, you've stayed strong. But what happens in India a lot is that वो ना बॉडी को छोड़ देते हैं, मैंने नौकरी में घुस गए, उस बॉडी छोड़ दिया। क्या ये चेंज हो रहा है इंडिया में या अभी भी वैसा ही ट्रेंड है? चेंज हो रहा है फिट रहने का। हाँ, क्या पीपल ट्राइंग टू बिकम फिटर नाउ, या पहले जैसे अभी भी पीपल आर नहीं, आई जस्ट नॉट थिंक अभी इंटरेस्टेड काफी वंस दे गेट अ चेंज हो रहा जॉब? है, लोग अपने फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं। और ओवरऑल मतलब जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जिनके मैं टच में हूँ, वो भी काफी फिट है। अच्छा, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। सो ये है बात। तो टेल मी अजिंक्य, व्हाट डू वी नीड हमारे देश को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए? बिकॉज मैं तो 25 साल स्पोर्ट में काम कर रहा हूँ, और मुझे एक क्वेश्चन पहले दिन से पूछा जाता था कि यार 1 बिलियन पीपल होने से कैसे हमें इतने कम मेडल मिलते हैं। वो क्वेश्चन बस इतना ही फर्क हुआ है कि अभी 1 बिलियन से हम लोग 1.3 बिलियन हुए हैं, बट वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है। क्या जरूरत है हमारे देश में टू मेक अ बेटर परफॉर्मेंस? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए मतलब हमारा देश मतलब अभी जिस तरीके से अलग अलग स्पोर्ट्स में हम अच्छा कर रहे हैं, अलग अलग सारे प्लेयर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक जस्ट इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट विजन टुगेदर। जो भी स्पोर्ट्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, हैविंग दैट विजन एंड कमिटमेंट, योर एटीट्यूड, अगर वो सब होगा तो बाकी की चीज़ें अपने आप हम अचीव करेंगे। बट इंडिया में काफ़ी अभी स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं, और इंडियन सारे टीम्स स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं ओवरऑल, तो उनका भी फोकस फिटनेस के ऊपर है, ओवरऑल स्पोर्ट्स खेलने के ऊपर है। तो आई थिंक हैविंग दैट विजन, एटीट्यूड एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स योर sport is really important. No, absolutely. I think you said truer words have not been said. I've worked in cricket, I've worked in football, I've worked in other sports, I've worked in volleyball. यही बात है, if we give them India's, one thing I've realized about India, talent की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। कोई भी Absolutely. स्पोर्ट पकड़ लीजिए, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। I've seen volleyball players, अमेरिका से we bought them for the volleyball league out here, and they said, I can't believe these Indian players have not been playing in foreign leagues. Why? Because उन लोग को एक्सपोजर नहीं है, और फिजिकल फिटनेस नहीं है, 3 है फैसिलिटीज नहीं है। एंड आई थिंक हडल इज वन ऑफ द वेज वेयर स्लोली वी आर ट्राइंग टू मेक दोस I think, फैसिलिटीज, but I ट्राइंग think टू that's मेक। changing now.
Yeah. And that's the thing, making more facilities, allowing people to play. And I think सबसे बड़ी चीज है changing the culture of sports. Sport is not something that only sportsmen play or children. Sports is something that, adults play, everyone plays. All of us play sport because sport is necessary. And I think those are things that are changing in India, and hopefully with Huddle, we can help make the change anymore. I'm So sure. I'm sure. thanks so much for everything, Ajinkya. Thank you for your time. One last thing, if anyone was to ask you advice on entering sport, what advice would you give them? I think just be passionate, be sincere, and I think, and what I believe in is working hard, which you can control every time, and yeah, I think having that vision, which is really Perfect. important. Perfect. Thank you so much, Ajinkya, for a wonderful, wonderful time. Welcome to Huddle. Looking forward to your passion, your commitment in helping us make this a nation of players instead of a nation of watchers. Thank you so much, and all the Thank you. best for the rest of the Dream 11 IPL. Thank you so Thank much. you so much, John. Thank you so much. Thank Really you. good to meet Thank you. you. Yeah. Thank Proud to you. be Thank you. part of Huddle team. Thank you. Thank you. And that's all from us, guys. It's wonderful being here. That was Huddle with Jinx, catching up with Jinx on Huddle. Thank you.